potentials. हमने लास्ट में शुरू की तो उसको हम खबर नहीं किया तो बिगिन टू है कौन सा UPZ प्राइम तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड दोनों मिलके तो इनमें ट्रांसफॉर्म हो। अब ये ट्रांसफॉर्मेशंस आई कहाँ से थी? They came from our insistence that the Lorentz force should have the same form in both fields. Since Q is equal to Q prime, so मैंने Q लिखा. That if there is some charge Q, यहाँ पे वो speed V से move कर रहा है, यहाँ पे वो speed V prime से move कर रहा है. There are some fields E prime, D prime. तो यहाँ पे वो fields E और B हैं. So, according to first principle of relativity, the basic laws should have the same form. So, to have the same form, the static fields, actually for this they don't have to be static. The fields in this frame they transform to fields in this frame according to these equations. If they do, then we have the same form for the Lorentz force law. And we already know how the velocity is transformed. So, हमने velocity transformation की equation जो है वो पहले डेवलप की थी वो यूज की. So, field transformation के लिए you don't even need Maxwell equations. These transformations are needed just to preserve the form of the Lorentz force. Let's now see what happens to the Maxwell equations. We had the source transformation equation as well. So the charge densities transform like this, where we have some charge density rho prime which is moving with some velocity w prime, equivalently the charge density rho moving with speed w. So this rho is related to this rho prime to this, where this w x prime is the x component of this velocity. अगर आप rho से rho prime ही डालना चाहते हैं तो यहाँ पे rho prime आ जाएगा kappa rho 1 minus u over c square wx. And the current transform like this. So the current density is defined like this in one coordinate system and like this in the other coordinate system, and they are related like this. X component Y component where kappa is as always 1 minus this is just a sign. So ये हमने ट्रांसफॉर्मेशन का सोर्सेस के लिए और फील्ड्स के लिए. अब हम मैक्सवेल इक्वेशंस हैं उनकी ट्रांसफॉर्मेशंस.
unprimed coordinates, and we want to see what they look like in the unprimed coordinates. और लास्ट टाइम हमने इस इक्वेशन से शुरू किया था. I'll come back to it, but let me just note this thing. Since x is equal to kappa x prime plus ut prime, ut is this, we can use these relations for derivatives, and y equal to y prime is equal to z prime. If we have this thing, we can replace a derivative with respect to x prime as partial f by partial x by partial x prime is kappa, and partial t by partial t prime is kappa again. Partial t by x prime, so kappa u over c square. Similarly, partial f by partial t prime is kappa u partial f by partial t prime is partial f by partial x, and then partial x by partial t prime plus partial f by partial t and partial t by partial t. So partial x by partial t prime, ये वाला या kappa u. So partial f by partial t prime is kappa u partial f by partial x, or partial t by partial t prime, partial t by partial t prime, kappa, so kappa partial f by partial. और चूंकि इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में we are taking these fields to be statics, ठीक है. O प्राइम ऑब्जर्वर के लिए हम ये assume कर रहे हैं कि चार्जेस और करंट डेंसिटी जो है वो स्टैटिक है, which means the fields are static. So the derivative with respect to p primes are 0, which means that इसको 0 कर दें. So ये kappa फिर cancel, later we get यहाँ minus u partial f by partial x is equal to partial f and partial. We can make this substitution. So this so these are the tools that we are going to use. So we have this relation and we have this relation, and using these two relations of derivatives, we are now going to see the transformations of these equations combined with the field transformations. सर हम यहाँ पर टेम्परेचर से डेरिवेटिव टेम्परेचर कौन सा? ओह सॉरी टाइम कहाँ पे लेंगे? सर ये मतलब हमारे पास यहाँ पर हम एक चैनल अप्लाई कर रहे हैं ये सर पर ये बनाएंगे partial x over partial x square. तो सर वहाँ पर भी के साथ हम उसको आप कह रहे हैं कि इसको टू ब्रेक में मिले जी सर हम सिर्फ x के साथ डेरिवेटिव क्यों नहीं ले रहे इसको? क्योंकि ये देखें, ये जो x प्राइम है, this is function of two things. जिसका x function of two things है, क्योंकि x और x प्राइम t प्राइम पे डिपेंड कर रहा है, इसका x प्राइम x और t पे डिपेंड कर रहा है. तो change with respect to x prime in the other coordinate is the change with respect to x and t both.
अगर कोई क्वांटिटी प्राइम कोऑर्डिनेट में लेट्स से सिर्फ x के अलावा चेंज हो रही है तो वो अनप्राइम कोऑर्डिनेट सिस्टम x और t दोनों के अलावा चेंज हो रही है बिकॉज इन रिलेटिविटी दे आर बोथ कपल्ड। और इन जनरल अगर हम इसको यूं लिख सकते हैं अगर फंक्शन में चेंज नहीं हुई तो ये पार्शियल t में पार्शियल x प्राइम 0 आ जाएगा अगर उसकी उसको डिपेंडेंस नहीं है। और ये मैंने डेरिवेटिव इसलिए इंट्रोड्यूस कर दी है कि यहाँ पे देखिए सब के अंदर है क्या इसमें बेसिकली पार्शियल x प्राइम टाइप चीजें पार्शियल x प्राइम पार्शियल y प्राइम पार्शियल z प्राइम। तो चूंकि y और y प्राइम z प्राइम बराबर है तो वो डेरिवेटिव तो आसानी से हम रिप्लेस कर लेंगे। तो दूसरे डेरिवेटिव्स को अगर हमने दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम में लेके जाना है तो वी हैव दिस रिलेशन x प्राइम के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव है वो इसके बराबर पुट करेंगे और जो रिस्पेक्ट टू t प्राइम डेरिवेटिव है क्योंकि ये स्टैटिक फील्ड है वो 0 है so we now have this relation between that t and x derivative। अब I'm not sure कि आपको ये कॉम्प्लिकेटेड नजर आ रहा है कि नहीं बट अगर मैं इसको देखूँ तो मुझे तो ये बहुत सिंपल साबित है। अगर आपके पास प्रॉब्लम ये है कि you have the equation for source transformation, you have the field transformation equation, we now have the derivative transformation equations, and all we need to do is carefully do the algebra and transform each equation into the other equation. Right? Conceptual difficulty कोई नहीं, there is only an operational difficulty if there is any, जो कि वो भी नहीं है मैडम। यदि जब आपने df by dt प्राइम किया वहाँ पर और उसको 0 से इक्वेट किया इनके बस ऐसे एक फ्रेम में स्टैटिक आप ये करना चाह रहे हैं। हाँ क्योंकि हमने इस फ्रेम में assume किया होगा कि the field is static। हाँ तो फिर वो उस फिर वो फिर x प्राइम और dt प्राइम नहीं होगा df by dx प्राइम फिर dx कहाँ पे ये वाला क्या जी? ये प्राइम ये यहाँ से निकालेंगे देखें पार्शियल f by पार्शियल t प्राइम इसके बराबर है। अच्छा ये यहाँ से ये आ गया और ये डेरिवेटिव 0। ओह ठीक है तो दिस इज 0 सो जो o पे x और t का रिलेशनशिप यहाँ से हम निकाल सकते हैं। ठीक है वो प्राइम का रिलेशन तब निकलता है अगर दूसरे में भी स्टैटिक हो। और आप ये देख सकते हैं कि हम क्यों स्टैटिक ले रहे हैं क्योंकि हम सारा ये हम पिछले दो डिस्कशन इस बात पे चल रही है क्योंकि जस्ट बिगिनिंग विद द कूलम लॉ एंड सम अदर एसोसिएशन तो वी आर ट्राइंग टू ड्राइव द फुल डायनामिक मैक्सिमम। पहले हमने कूलम लॉ से जो है वो मैग्नेटोस्टैटिक्स डेवलप किया। we saw that if we define a new field which we call magnetic field in a particular way then we get both the definition of magnetic field and we also drive the Lorentz force QB plus P। अब हम ये कर रहे हैं कि let's say और चूंकि field electric field static था magnetic field उसमें static था। If we have electric and static magnetic fields in one frame we are now going to see that they actually look dynamic in another frame। अगरचे इसमें जो डायनामिक्स आएगी वो थोड़ी रिस्ट्रिक्टेड क्लास की होगी लेकिन बाद में हम देखेंगे वी डोंट इवन नीड दैट रिस्ट्रिक्शन इन जनरल भी वो। तो प्राइम के अंदर सोर्सेज इस तरह से हैं कि दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम so that the fields are independent of time and now we are going to see how do these equations transform into another frame in which is moving with respect to these things। ओके तो सबसे पहले हम जो सिंपलेस्ट है उसके करस्पॉन्डिंग इक्वेशन लेंगे। ये लास्ट टाइम मैंने इस विंडो से शुरू किया तो उस तरह से भी कर सकते हैं बट दैट बिकेम बिट मोर कॉम्प्लिकेटेड। सो लेट मी स्टार्ट इन दिस केस कि इसको अगर ट्रांसफॉर्म करना है तो लेट्स सी व्हाट डज del dot b look like in the other coordinate system। so del dot b is partial dx x partial dy y partial equals 0 and now I can replace bx from there so this is partial and for partial x we can do an equation similar to this
तो ये पार्शियल एक्स प्राइम है, तो ये इसके बराबर पार्शियल एक्स जो है यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा। सो दिस बिकम्स kappa partial x prime dx prime minus u over c square partial dx prime by partial t prime। जी ये अगर डेल डॉट डी को 0 के लिए टाइम फ्रेम होगा ना, तो आपने dx प्राइम आंसर ये we don't know what it is we want to see but so ये इसके बराबर है। ये ठीक है, मैंने bx को एक तो bx प्राइम लिख दी और जो पार्शियल x है इसको लिख दिया kappa partial x प्राइम माइनस u over c स्क्वायर partial जो ये है इसमें ये तो सिंपली पार्शियल b प्राइम बन जाएगी y प्राइम और by जो है वो वहां से हम लिख लेते हैं kappa bz प्राइम प्लस हमने by लिखा सही है। आप जो है प्राइम से उधर क्यों नहीं आ रहे? उधर से भी आ सकते हैं, दैट्स बिट मोर कॉम्प्लिकेटेड, उसमें रिवर्ट करना पड़ेगा, इसमें थोड़ा सिंपल होगा। पार्शियल b प्राइम इज kappa, जो मैं स्टेप्स करूंगा अगर आप उनको उल्टा करेंगे तो यू एक्चुअली essentially go from here kappa by प्राइम माइनस kappa u over c square ez प्राइम प्लस पार्शियल z प्राइम और bz की जगह पे आ जाएगा kappa bz प्राइम प्लस kappa u c square e y या यहाँ से ये कैसे dx को 10 पहले dx प्राइम कर दिया, तो जो पार्शियल x है तो देखिए ये मैंने ड्राइव किया होगा ना पार्शियल x प्राइम का, तो पार्शियल x है वो यहाँ पर माइनस साइन के साथ आ रहा है चेन रूल से ना उसको हाँ, लेकिन वो तो ये है ना dx changes to dx prime but this partial x has to change differently। This is length, this is field, so field transformation वहाँ पे मैंने लिखी है, length transformation जैसे इसकी मैंने यहाँ पे अब हर चीज देखिए हमने प्राइम में कन्वर्ट कर दी। इसमें एक तो क्विकली आप देख सकते हैं कि मैं जो इस तरह की टर्म है ना वो इकट्ठी कर देता हूँ। एक ये टर्म इसमें kappa कॉमन पार्शियल dx प्राइम में पार्शियल x प्राइम, एक ये टर्म भी इसमें इकट्ठी कर देते हैं प्लस पार्शियल dy प्राइम में पार्शियल y प्राइम और ये जो है इधर इकट्ठी कर देते हैं पार्शियल bz प्राइम में पार्शियल प्लस बाकी क्या बच गया, एक ये बच गया माइनस kappa u over c square partial dx प्राइम partial t प्राइम, यहाँ से बच गया माइनस kappa u c square partial ez प्राइम partial y प्राइम, यहाँ से बच गया प्लस kappa u c square partial e y प्राइम partial z। So del dot B is now kappa and this is nothing but del dot ये आ गया। इसमें मैं कहता हूँ कि जो पार्शियल P प्राइम है
So this is 0 actually, right? तो बाकी बचेगा हमारे पास, आप समझ रहे हैं क्यों 0 प्लस का पाई ओवर सी स्क्वायर, क्योंकि स्टैटिक फील्ड पार्शियल तो ई बाय पार्शियल जी प्राइम माइनस पार्शियल ई जी प्राइम बाय पार्शियल जी। सर वो कहते हैं कि ये मैग्नेटिक फील्ड से वो है हाँ स्टैटिक है तो 0 हो गया पार्शियल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का इलेक्ट्रिक के स्टैटिक नहीं है उसी टाइम। हाँ तो उसका भी जहाँ पे टी प्राइम में 0 डायरेक्ट आएगा वो 0 उसी टाइम डेरिवेटिव टाइम डेरिवेटिव है। वो टाइम डेरिवेटिव हाँ वैसे अब ये देखिए ये क्या है, जैसे 0 सो दिस गोज अवे, और ये टर्म जो है ये भी 0 है, which you can see from this equation। इस इक्वेशन को देखिए, इसका क्या मतलब है? This means that x prime partial ez by partial y minus partial ez by partial z prime minus y hat partial e d by partial x minus partial ex by partial z prime plus z hat partial ey by partial x minus partial ex by partial y, this is equal to 0। तो ये कर्ल x काउंट करेंगे जी कर्ल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड x काउंट करेंगे। हाँ तो अब ये जरा देखिए, ये चूंकि 0 है तो इसको एक्सपेंड करके मैंने ये लिखी। अब वेक्टर कब 0 होता है? वेक्टर उसको कब 0 होता है? उसका हर कंपोनेंट इंडिविजुअली 0 होता है। सो दिस हैज टू बी 0, दिस हैज टू बी 0, दिस हैज टू बी 0। और वो में से कौन सा? वो में से है ये वाला, नहीं x काउंट y और z वाला, ये वाला। सो दिस इज 0, इट मीन दिस इज आल्सो 0, which means that वो 0 है तो फिर वो उल्टा हो गया, इधर को वो 0 तो ये माइनस साइन है तो इसने 0 के बराबर है, तो ये पहले आ रही है वो बाद में आ रही है। सो जो पहली इक्वेशन है उसकी ट्रांसफॉर्मेशन वहां से, अगर आप उल्टा चलना चाहते हैं तो आप उल्टा भी स्टेप को रिप्लेस करके आ जाए, तो यू विल स्टिल यू कैन गो फ्रॉम that thing to this thing। ठीक है ना जी, फॉलो करें। बेसिकली जब ये कैसे इसका सॉल्व करते हैं। अब हम आते हैं एक दूसरी सिंपलेस्ट इक्वेशन। इसके बाद जो सिंपलेस्ट इक्वेशन है वो है डेल प्राइम क्रॉस ई प्राइम इक्वल टू 0। सो लेट्स सी how this transforms। So this 0 is equal to x hat इसको मैंने लिखा हुआ वहाँ पे आप उसी समझ लें। So जो सबसे टॉप वाली इक्वेशन है लेफ्ट पे, उसकी ट्रांसफॉर्मेशन देखते हैं। सर ये बताएं कि ये डेल प्राइम डॉट बीटा अगर 0 भी किया तो वो मतलब ये 0 ही है ना। अच्छा ये तो 0 है। अब हम इसी इक्वेशन की ट्रांसफॉर्मेशन देखते हैं। सो दिस इज इक्वल टू दिस, और इसमें इस तरह करें कि ये इजी प्राइम ई वाई प्राइम और ये जो ई एक्स प्राइम है इनकी वैल्यूज पुट कर दें यहाँ से, और ये जो डेरिवेटिव्स हैं
इनकी एक्सप्रेशंस पुट कर दें यहाँ से, जो पार्शियल पार्शियल y प्राइम है वो पार्शियल पार्शियल y हो जाएगा। So we'll get 0 equal x hat तो अगर इस अलजेब्रा के टॉटर से गुजरे तो फिर भी यकीन आता है कि ये चीज़ इसमें ट्रांसफॉर्म होगी। So this is how the x component will come about. Easy prime की जगह पे मैंने डाल दिया easy plus u b by। वही बात है easy की ट्रांसफॉर्मेशन। easy है ना, वहाँ से कापा easy prime माइनस कापा u b by प्राइम। तो चूंकि अब वो यहाँ से प्राइम से उसमें आ रहे हैं तो प्लस साइन हो जाएगा, कापा easy प्लस कापा u b by r। और जो पार्शियल भी पार्शियल y प्राइम है वो हो गया पार्शियल भी पार्शियल y। जो दूसरी टर्म है उसमें पार्शियल पार्शियल z प्राइम है तो वो सिंपल पार्शियल पार्शियल z हो गया। और जो e y प्राइम है उसकी जगह पे आ जाएगा कापा e y माइनस कापा u b z। तो वो माइनस आने की वजह से ये पहला माइनस दूसरा प्लस। अब जो y कंपोनेंट है लेट्स ट्रांसफॉर्म दैट प्लस y hat ये थोड़ा सा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। ये तो ये x है। इस टर्म की ट्रांसफॉर्मेशन आसान है। ये जो है कि ex प्राइम जस्ट ex हो जाएगा और जो पार्शियल पार्शियल z प्राइम है वो जस्ट पार्शियल पार्शियल z होगा, वो मैंने पहले लिख दिया। और इसमें एक तो आपने पार्शियल पार्शियल x प्राइम को यहाँ से चेंज करना है, वो मैंने लिखी है कापा पार्शियल पार्शियल x प्लस कापा u वर्सेस u। और जो इजी प्राइम है वो यहाँ से चेंज होगा। तो मैंने प्लस y कर दी तो वो उल्टा कर दिया, बाद में मैंने जो z है वो होगा अब जो है वो एक छोटी सी ट्रिक कर सकते हैं। इसमें अगर देखें ना तो ये है पार्शियल बी वाई और पार्शियल वाई, ये है पार्शियल बी जी पार्शियल जी, कापा यू है। तो अगर इसमें पार्शियल बी एक्स बाय पार्शियल एक्स होता ना तो ये सिंपली डेल डॉट बी बन जाता इनटू कापा यू। तो लेट्स ऐड दैट एंड सबट्रैक्ट इट, क्योंकि डेल डॉट बी का ये फायदा है कि उसको हम जीरो कर सकते हैं। सो दिस सम इज इन इफेक्ट इज इक्वल टू, और इनमें से जो है ये कॉमा में कॉमन ले लेते हैं, पार्शियल ई बाय पार्शियल वाई माइनस पार्शियल ई वाई बाय पार्शियल जी, इन दोनों से। और ये कापा यू कॉमन लिया तो इसमें पार्शियल 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 बी एक्स में पार्शियल एक्स ऐड किया और सब्ट्रैक्ट किया तो जो डेल डॉट बी है वो जीरो हो गया, और बाकी बचते हैं माइनस कापा यू पार्शियल बी एक्स बाय पार्शियल एक्स, ये आ गया एक्स कंपोनेंट।
अब फॉलो करें। अब यहाँ पे हम देखें, अब इसमें ये 4 ड्रम्स यहाँ से आएंगे और 4 में से मैं इस तरह करता हूँ कि जो 2 ड्रम्स हैं वो पहले लिख लेता हूँ और वो 2 हैं, एक ये ड्रम है पार्शियल EX बाय पार्शियल Z और दूसरी है ये ड्रम। नहीं इस तरह नहीं, ये है ना, इनसे अगर kappa u कॉमन है तो ये y ओवर y x z ओवर z, अगर इसमें x ओवर x होता तो ये डेल डॉट b बन जाना था, तो वो डेल डॉट b 0 होता है। तो आप एक वो ऐड कर लें पार्शियल dx पे पार्शियल x और एक सब्ट्रैक्ट कर लें, जो ऐड हुआ है वो इनके साथ मिलके डेल डॉट b 0 देगा, जो 0 माइनस का। हाँ, और जो सब्ट्रैक्ट हुआ है वो ये पार्ट यहाँ पे आता है। इनको हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर रहे हैं, माइनस kappa स्क्वायर पार्शियल EZ में पार्शियल x, फिर यहाँ पे आ गया माइनस kappa u पार्शियल dy में पार्शियल x, यहाँ पे आ गया प्लस kappa स्क्वायर u ओवर c स्क्वायर पार्शियल EZ में पार्शियल p, और ये लास्ट टर्म आ गई प्लस kappa u स्क्वायर ओवर c स्क्वायर पार्शियल dy में पार्शियल प्लस z है, ये मैं लिखने नहीं लगा क्योंकि ये आप इस तरह से लिख सकते। अब इसमें देखें, एक 0 इक्वल x है kappa पार्शियल पार्शियल y माइनस पार्शियल पार्शियल z माइनस kappa u, ये जो है टर्म ये u पार्शियल dx में पार्शियल x, इसको हम लिख सकते हैं माइनस पार्शियल dx में पार्शियल p, ये u पार्शियल dx में पार्शियल x में है ना, इसका इंटीग्रल माइनस पार्शियल dx में पार्शियल x और t का डेरिवेटिव हम वो क्या होता है x और d का क्या होता है डेरिवेटिव होता है u, ये है ना कि x और t जी माइनस u पार्शियल पार्शियल x इक्वल टू पार्शियल पार्शियल। अब यही चीज हम इधर लगाते हैं, अगर मैं इस तरह करता हूँ कि ये है पार्शियल पे पार्शियल है, इसको देखिए, ये जो पार्शियल पे पार्शियल d है इसका हम लिख सकते हैं u माइनस u पार्शियल पार्शियल x, तो वो u स्क्वायर हो जाएगा, साथ माइनस आ जाएगा, और लेट्स सी कि हमने माइनस से ही बैलेंस आ गया, यहाँ तो माइनस नहीं आ रहा था, सारी टर्म माइनस ही होगी, ठीक है, क्योंकि ये बाहर माइनस है नहीं तो अंदर सारी जगह पर प्लस, तो ये माइनस से ये प्लस हो जाएगा, तो प्लस u स्क्वायर ओवर c स्क्वायर आ जाएगा, और प्लस y हैट पार्शियल x ex बाय पार्शियल z, तो यहाँ पे आ जाना u प्लस u स्क्वायर ओवर c स्क्वायर और पार्शियल पार्शियल x, तो इन दोनों में से kappa स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, पार्शियल EZ में पार्शियल x भी कॉमन आ जाएगा और बचेगा 1 माइनस u स्क्वायर ओवर c स्क्वायर, और 1 माइनस u स्क्वायर ओवर c स्क्वायर जो है वो 1 ओवर kappa स्क्वायर से कैंसिल, सो वी आर लेफ्ट विद माइनस पार्शियल EZ में पार्शियल x, और यहाँ पे हमारे पास टर्म्स
बिल्कुल उस तरह से ये जो पार्शियल पार्शियल एक्स है इसको आप रिप्लेस कर दें पार्शियल पार्शियल एक्स, ये जो माइनस यू पार्शियल पार्शियल एक्स है ये बन जाएगा पार्शियल पार्शियल टी, और फिर यहाँ पे गड़बड़ तो नहीं, सारी ठीक है। ये कॉपर है और ये यू, तो ये पार्शियल पार्शियल एक्स जो है यू के साथ, ठीक है, ये बन जाएगा यू स्क्वायर पार्शियल ओवर पार्शियल टी। नहीं सॉरी यू भी चला जाएगा, ये आ जाएगा कापा पार्शियल पार्शियल टी, और इस टर्म में कापा भी कॉमन आ जाएगा और पार्शियल बी वाई में पार्शियल टी भी कॉमन आ जाएगा, और आपके पास बच जाएगा 1 माइनस यू स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर, और 1 माइनस यू स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर होता है 1 ओवर कापा स्क्वायर, तो एक कापा उस कापा से कैंसिल हो जाएगा एंड वी विल बी लेफ्ट विद 1 ओवर कापा। तो मींस के यहाँ पर हमने एक कर ये टर्म आई है कहाँ से, यहाँ से, तो एक कापा ये है, ये कापा हम बोलते हैं, ये कापा इनटू कापा स्क्वायर है बेसिकली, और ये भी कापा स्क्वायर है, तो 1 ओवर कापा स्क्वायर है, कापा स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा एंड वी आर लेफ्ट विद प्लस पार्शियल बी वाई बाय पार्शियल। सिमिलरली जो जी वाली टर्म है वो बनेगी, तो ये पार्शियल बी वाई क्या कह रहे हैं, समझ आ गई? बेसिकली इनमें से भी ये कापा स्क्वायर और ये पार्शियल बी में पार्शियल टी कॉमन आता है, बाकी बचता है 1 माइनस यू स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर, तो वो 1 ओवर कापा स्क्वायर से कैंसिल, वी गेट पार्शियल बी बाय में पार्शियल। सो दो टर्म्स कंबाइन हो गए तो ये कापा स्क्वायर इधर से खत्म हो गए, और इधर दो टर्म कंबाइन हो गए तो वो कापा स्क्वायर की होगा पार्शियल बाय पार्शियल। अब उस इक्वेशन से हम चले थे डेल प्राइम क्रॉस ई क्रॉस से, तो हम इसी इक्वेशन पे आए। अब आप देख सकते हैं कि हम ये कापा खत्म कर सकते हैं, ये आप सोचें, क्योंकि मुझे 1 घंटा लगा कि सोचे ये कापा कैसे, ये वाला कापा, देखिए इसी इक्वेशन में यहाँ पे कापा नहीं है, लेकिन ये कापा जो है वो खत्म कर सकते हैं। आई कैन जस्ट राइट इट हाँ उधर 0 है, लेकिन उधर सिर्फ दो टेक टर्म के साथ, सो आई कैन राइट इट एज डेल क्रॉस ई प्लस पार्शियल बी बाय पार्शियल। सो कैन आई eliminate that pop? क्यों? This is the point. Yes, हम लोग 3 कंपोनेंट लिखे, तीनों कंपोनेंट इंडिविजुअली 0 है। You begin from here. कापा नहीं कॉमन लेके नहीं होता। So this is 0 and this is 0 and similarly the third one is 0. तो ये आप यहाँ से खत्म कर सकते हैं. You can again तीनों चुके 0 है, you can add all 3 equations and you can go back there without kappa. So जो पहली दो टर्म्स हैं they are actually just the curl of e, और जो आखिरी टर्म है तीनों के अंदर that is the
magnetic component of magnetic field. So it can be written like this, which means that we have Faraday's law simply as a consequence of relativity. So, in essence, when Oersted started doing experiments and figuring out that the electric and magnetic field affect each other, essentially that was an relativistic effect, which was formulated, actually not formulated by Faraday himself, but later on by other people. But he put those results into quantitative form that could be used to create the formula. So हमने simple equations कर ली हैं. Now we are on to bit more complicated equations. हाँ, लेकिन ये kappa उसको कर सकते नहीं. ये equal to 0 है ना, तो मैं kappa से divide कर सकता हूँ. ठीक है? तो असल ये चीज़ है कि वेक्टर इक्वेशन जिसमें और चूंकि 0 की इक्वल है, इंडिविजुअल कंपोनेंट को आप इंडिविजुअली ऑपरेट कर सकते हैं. It's just 3 equations written together. So the vector equation is just 3 equations written together. Actually, though, उसका time था, even though Maxwell computerized है, because people didn't know vectors at that moment. Vectors haven't been invented. So that's why you see, I think 14 or 16 equations in Maxwell computerized. Okay, everything is scalar. So how to take a direction के लिए कोई function है, वो use करते हैं. Later on, when the vector calculus was discovered at the end of 19th century and became popular in 1920s, 30s, then in the whole 1950s, the electrodynamics books started to be written using vectors. So उससे जो है ना वो फॉर्म थोड़ी सिंपल है, उसको लिखना भी आसान है. E prime स्टडी किया हुआ जी? E prime स्टडी किया हुआ. हाँ, B प्राइम स्टैटिक. इस फ्रेम के अंदर ये सारे स्टैटिक हैं. लेकिन दूसरे फ्रेम के अंदर स्टैटिक नहीं है. You see there is a constant. अब हम जो है वो नेक्स्ट सिंपलेस्ट इक्वेशन से शुरू करते हैं, which is del prime dot E prime is equal to this. एक तो आप इसमें भी यूज कर सकते हैं कि इसको ट्रांसफॉर्म करें जो बनती है. दूसरी तरह इसमें भी हम थोड़ा ज़्यादा आसानी से कर सकते हैं. If I start from this side, okay, what is del dot E? So अब मैं पूरी अलजेब्रा नहीं करूँगा, but you can see from that side that what del dot E should be. It should be kappa del prime dot E prime, right, plus kappa U dv prime partial y prime minus partial. So अगर आप ये E एक्सप्रेशन पुट करें and use the similar trick, वो जो ऊपर टॉप इक्वेशन लिखी है उसके करस्पॉन्डिंग ये इक्वेशन आ जाएगी. सिर्फ 1 over c square का फैक्टर नहीं है because of how the field transform from there. So delta E इसके बराबर आता है. Now अब ये चीज 0 नहीं है. ये क्या है? This is rho prime over epsilon naught. And what is this thing? यहाँ से आपको देखें ये डेल क्रॉस पी क्रॉस का कौन सा कंपोनेंट है? हाँ, x कंपोनेंट. ठीक है, इसमें देखिए z और y आ रही थी x कंपोनेंट. So इसका x कंपोनेंट जो है वो करंट के x कंपोनेंट के बराबर है. So this thing is then mu naught j prime. So let me take kappa over epsilon naught common, so we get rho prime plus u
म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट और jx प्राइम किसके बराबर है? jx प्राइम इज kappa jx prime sorry kappa jx minus rho u kappa jx minus kappa rho u kappa v सही है फॉलो कर लो यहाँ से मैंने ये kappa और एप्सिलॉन नॉट कॉमन ये इसमें एप्सिलॉन लिए तो इधर लिख लिया और ये म्यू नॉट u लिखी और जो jx प्राइम उसके क्या होगा kappa jx minus kappa rho u so what was del del e आ गया kappa over epsilon naught rho prime so this is 1 over c square plus u over c square सर ये कब आएंगे सर कितना है जी वो क्योंकि सर वहाँ पर काफी गाइड है यस सर jx की बात कर रहे हैं तो ठीक है kappa दोनों के साथ ही मल्टीप्लाई होगा ना इसके साथ इसका इसके साथ तो हो रहा है वो यू का पा लिखना है तो जब नहीं आ रहा ना ये kappa लिखा है इसको वो पहले भूल गया था तो फिर बाद में उधर ही लिख दिया वो तो मेरा ठीक है तो kappa दोनों के साथ सो और ये मैंने u over c square कर दिया kappa और jx की भी वैल्यू पुट कर देते हैं jx क्या है ओमेगा wx राइट माइनस u over c square rho क्योंकि ये u square हो जाएगा सर ये प्रॉपर एक्सप्रेशन से नहीं है वो काफा बोल रहा हूँ jx प्राइम का अच्छा ये वैसे 1 over kappa jx minus rho jx minus kappa rho u u का साइन माइनस u से कर दें और रो प्राइम की जगह पे रो कर लें अदरवाइज तो आप फिर रो प्राइम की फॉर्म में ले लें जो आप कह रहे हो ठीक है अगर आप वो सारी चीजें पकड़ के उधर ले लें लेकिन फिर वो कोऑर्डिनेट्स मिक्स हो जाते हैं कोशिश ये होती है कि हम इस तरह से लिखें कि jx को एक्सप्रेस करें इन टर्म्स ऑफ ऑल द थिंग्स इन प्राइम तो अगर आपने jx प्राइम को लिखना है इन टर्म्स ऑफ ऑल थिंग्स अनप्राइम तो फिर फॉर्म यही बनेगी अगर आप रो प्राइम ही इन्वॉल्व करना चाहते हो तो फिर ठीक है उसको पकड़ के उधर ले लेते हैं तो मिक्सर से बचने के लिए ये बहुत सिंपल था u को माइनस u से करें और बाकी भी जो प्राइम है वो अनप्राइम से लिखा है एनीवे तो ये हो गया u स्क्वायर ओवर c स्क्वायर रो और ये रो प्राइम है और रो प्राइम की जगह पे आ जाएगा रो kappa minus 2 so rho is kappa rho prime is kappa rho minus kappa rho u over c square w u over c square wx तो ये इससे कैंसिल नहीं हो रहा kappa rho u c square ये हो तो बाकी इसको ये बचे माइनस u स्क्वायर c स्क्वायर रो तो ये रो कॉमन ले लेते हैं kappa भी कॉमन लेते हैं kappa स्क्वायर हो जाएगा तो अंदर बन जाएगा 1 minus u square over c square whether 1 over kappa square is gone so we are left with rho over so del of E transforms in a similar fashion and we are left actually with the most critical equation I would say. Okay, how does this thing transform? तो इसको आप एग्जैक्टली उस तरह से फॉलो अप करेंगे ठीक है
जिस साल में वो डेल क्लास ड्रॉप को ओपन करना शुरू किया, लेकिन उसमें हमें फ़ायदा ये था कि एक तरफ ज़ीरो था, ठीक है, इसमें ज़ीरो नहीं है. सो यू हैव टू कीप इन माइंड दैट ऑन द लेफ्ट साइड यू हैव दिस. सो लेट मी राइट व्हाट इट टर्न्स आउट टू बी. सो अगर आप ओपन करें तो लेफ्ट साइड पर लेट्स से ये आ गया माइनस यू नॉट जे प्राइम, और राइट साइड पे आ जाता है एक्स हैट पापा पार्शियल डी बाय पार्शियल वाई माइनस पार्शियल डी बाय पार्शियल सी माइनस वन और सी स्क्वायर पार्शियल डी बाय पार्शियल टी माइनस पापा डी सी स्क्वायर E plus y है. And this you can appreciate कि ये ऐसे ही आएगा क्योंकि ये ऑलमोस्ट एग्जैक्टली मैंने उसी को लिखा है. जस्ट उसमें डेल डॉट बी को हमने जीरो कर देते, यहाँ पे हम इसको जीरो नहीं कर सकते, ये टर्म वैसे ही है. ट्रांसफॉर्म किया था तो इसके बारे में कुछ पता है ना, इसके डॉट ई के बारे में, इसके बारे में कुछ पता है? हमने ऑलरेडी डेल डॉट डिफाइन किया, हाँ निकाला हुआ है उसके बारे में हम हमने कर दिया. लेकिन मैं कह रहा हूँ कि ये एक्सप्रेशन आप अप्रिशिएट कर सकते हैं कि ऐसे ही आएगा क्योंकि ये ऑलरेडी हमने जो ड्राइव किया इसी तरह था. सो इसको टॉप अप कर. तो पहले टर्म से पापा आ रहे हैं, सब पापा आ रहे हैं. बट ऑन लेफ्ट साइड वी हैव दिस थिंग व्हिच इज नथिंग बट when we look at some mathematics it's really amazing. यहाँ पे कापा इसके साथ था और यहाँ उधर भी कापा है, so we are easily able to get rid of कापा. Why did it be dx upon dz? यहाँ पे Why? यहाँ पे यहाँ Why is everything y? ये zero x है तो ये x of 0. अब जो है असल में आप आराम से देख सकते हैं ट्रांसफॉर्म टू द यूजुअल वे वी नो द इक्वेशन, क्योंकि आप इस कंपोनेंट को इसके बराबर रखेंगे कापा कैंसिल हो जाएगा. जो डेल डॉट ई है इसकी जगह पे आप रो ओवर वो पुट करेंगे यू सी स्क्वायर, वो इस टर्म से ऑटोमेटिकली वो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है. एंड क्योंकि ये म्यू डॉट है ना, तो यहाँ पे ये म्यू डॉट इनटू रो यू है, और यहाँ पे आएगा रो ओवर एप्सिलॉन नॉट, और एप्सिलॉन नॉट इनटू सी स्क्वायर क्या होता है, म्यू नॉट होता है. सो दिस टर्म will cancel this thing, and then you again have mu naught into jx equal to the first part, second part, third part, and you can rearrange it into this thing. Then del cross b is equal to 1 over c squared partial e partial t plus mu naught. So this is how this equation is transformed. You also see that this term naturally comes out. अगर relativity से ड्राइव की होती तो Maxwell did have to spend like 40 years on this. लेकिन of course relativity is the key. Proper relativity. How long did Maxwell take to derive these? I think he spent 30 years on these things. So but क्योंकि उसके पास ही इक्वेशन एक्चुअली ऑलरेडी थी. क्या था जब मैक्सवेल when he started looking into this thing, he was a theoretical physicist, not an experimental.
And then there were experimenters, especially Faraday, और उससे पहले कूलम, जिनके results थे, and all these things thought to be like separate from each other, except when Faraday and Ampere, their experimental results were saying that electric and magnetic field are somehow related. So this was the person who tried to make sense of all of these things and tried to come up with the sort of a theory of everything for that time. And he combined all those things, and when he saw the equations, he discovered that without this term, the continuity equation doesn't work. That was the basic observation. The charge conservation doesn't work. To have charge conservation, you need this term. And also, he argued from symmetry, because it was actually, we can bash the supernatural or metaphysical concept of those times, but sometimes they were also driving forces of something. For example, there was this concept that if this thing causes and this is an effect, the reverse should be true. Without any scientific basis, there was just a common belief that if this causes this effect should cause the same thing. So reverse should also be true. And he argued by that fact as well, that if the electric field, the magnetic field can produce electric field by producing electric current, the reverse should also be true. So the electric field should be able to produce magnetic field. And because of all these things, and then he went to great length about postulating what ether is. That ether is not just small, transparent, spherical particle that you can imagine that they vibrate when light passes through them as an electromagnetic wave, but he imagined them to be as made of like two types of layers, where there are one layer where is a particle that can twist like this, and then there are particles between these two twisting layers. There is a layer of particle which can go like this and that. So if he imagined that if electric field excites these particles, which can move like this, and the magnetic field is produced, because if you imagine like these types of particles, and there are these, then like you can say tooth particle, they cannot go like this, but they can only go around. So if magnetic field can be imagined as the twisting of these particles, and we can think of producing the electric field by magnetic field like this. कि अगर ये जो है ऐसे ऐसे घूमते हैं, तो इनका जो घूमना है, this should drive these particles like this. So this is the magnetic field producing electric field. So he said, by the same token, if I move these particles this way, they should set into motion these magnetic particles. So if the magnetic field produces electric field should produce magnetic field. So there were all these things, but the final result was this term that this has to be. And that's when this theory was completed, and light and electricity, magnetism were all united together. Okay, so coming back to this thing, हमने जो अभी तक derivation की है, it's for a very specific type of sources. हमने ये assume किया है कि जो O prime coordinate system है हमारा, उसके अंदर जो चार्ज डेंसिटी है और जो उसने करंट डेंसिटी प्रोड्यूस की है, दे आर कांस्टेंट इन टाइम. दैट के फर्क करें यहाँ पे कुछ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो दिस रिमेन्स लाइक दिस फॉर ऑल टाइम. इसीलिए तो कांस्टेंट स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है. और अगर कहीं पे कोई करंट है, सो दिस इज प्रोड्यूसिंग द मैग्नेटिक फील्ड विच इज टाइम. अब इन जनरल हमें पता सोर्सेज जो है उनकी टाइम डिपेंडेंसी से ज़्यादा की हो सकती है. और यहाँ से जब हम यहाँ पे आए हैं, so we have a situation in which the currents and charge densities are moving with uniform velocity. But in general, situation can be more complicated than this one. लेकिन ये जो इक्वेशन हमने ट्राई की है, they only relate the static charge and current densities to uniformly moving charges and current densities. So ये हमने जो भी derivation की है, this is for a restricted class of a situation. लेकिन we can argue that the same thing would be applicable in general, because you can imagine
one frame in which there is some charge density which is moving like this, and then there is another frame with let's say some other charge density which is definitely now moving in this thing, and because of since they both transform in the same way, so if this is solution of one situation and then there is another solution of the similar situation, because of the linearity of the equations, the superposition would hold. So the resultant is also true. The resultant transforms like this, which means that the arbitrary current distribution can be represented as a combination of these sub-distributions. So this should also hold in general, not only for this restricted class, जिसमें जो frame है वो x-axis पे along constant velocity के साथ instruction में move करता है। फिर तो ये जो आपने arbitrary small current distributions मतलब यूज किए हैं, तो आप कह रहे हैं कि ये हमेशा रेस्ट में है अपने फ्रेम में, मतलब हाँ, क्योंकि हमने जो ट्रांसफर किया we went from statics to dynamics, but this was a special class of dynamics. You see, in general, charge densities can fluctuate anyway, right? Or current densities can change in any way. So we have a general time dependence. लेकिन यहाँ पे एक फ्रेम ऐसा है जिसमें चार्ज और करंट डेंसिटी स्टैटिक है, तो जो डेरिवेशन है उसके लिए, तो in general जो situation है that can be broken into superposition of several charge densities in different frames moving with different velocities, कि वो एक पार्ट जो है वो एक फ्रेम में कांस्टेंट है, एक पार्ट दूसरे फ्रेम में कांस्टेंट है, एक पार्ट कोई अकेला फ्रेम तो ऐसा नहीं है जिसमें पूरी चार्ज की करंट डेंसिटी कांस्टेंट है, लेकिन there are frames in which a part of it is constant. So चूंकि ट्रांसफॉर्मेशन वो सबके लिए होल्ड करती है और the equations are linear in time and in space, so the superposition holds, which means that this should hold in general as well. So this concludes actually the first part of our course, when we were studying the transformations and we developed electrodynamics from the Coulomb law using these kind of things. Now the second part is the interaction of fields and charges. So that has two parts. The first is how do accelerated charges or moving charges radiate electromagnetic field, जो कि हमारा पहला part होगा. और दूसरा part होगा कि if there are fields present, how do the charge particle behave. तो पहले part में we are going to study basically radiation problems, और दूसरे part में we will study the Hamiltonian and Lagrangian formulation to deal with the charge particles in the electromagnetic field, which you can generalize in other courses to quantum electrodynamics, relativistic electrodynamics. जिसमें जो full Lagrangian है charge particle का, उसको यानी उस पर आप फिर base करके जो most radical fields हैं उनके Lagrangian जो हम जी नहीं, अब जो elite है that's done at this point. अब हम जो next lecture हमारा होगा we will be on chapter 23 of Zangwill की जो दूसरी बुक है. Unfortunately कोई एक बुक नहीं है जिसमें ये सारी चीजें हो, तो we have to